The message, modern events are made clear by prophecy, was delivered by our brother William Marion Branham on Monday evening, December 6, 1965, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International Banquet at the Orange Ball in San Bernardino, California, USA. ये सुसमाचार हमारे भाई विलियम मेरियन बर्नम के द्वारा सोमवार सांझ दिसंबर 6, 1965 में फुल गॉस्पल बिजनेसमैन फेलोशिप के लिए इंटरनेशनल बैंकेट ऑरेंज बॉल सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया यूएसए में प्रचारित किया गया, जिसका हिंदी शीर्षक आधुनिक घटनाएं भविष्यवाणी द्वारा स्पष्ट हुई और अंग्रेजी शीर्षक मॉडर्न इवेंट्स आर मेड क्लियर बाय प्रोफेसी है। Let's bow our heads. Dear Heavenly Father, we thank Thee tonight because that You answer prayer for us. आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज रात्रि हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप वो हैं जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। This poor dear woman laying there where surgery has failed. But, oh God, we remember the first surgery was ever performed in the earth. You did it yourself. You'd taken from the side of Adam a rib, closed up the incision and made a wife. ये बेचारी स्त्री यहाँ पर पड़ी है जिसकी शल्य चिकित्सा असफल हो चुकी है, परंतु ओ परमेश्वर, हमें स्मरण है कि जब पहली शल्य चिकित्सा कभी इस पृथ्वी पर हुई, आपने इसे स्वयं किया था। आपने आदम के एक ओर से एक पसली निकाली और चीरी हुई जगह को बंद किया और एक पत्नी बनाई। Oh Father, I pray tonight that Your hand will come down now and will perform this great thing that we're asking for. ओ पिता, आज रात्रि हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका हाथ नीचे आएगा और इस महान चीज को करेगा जो कि हम आपसे मांग रहे हैं। These others, Lord, this woman that's suffering with the mental oppression, all others who's got requests, we just commit them to Thee, Father, with our whole hearts in the name of Jesus Christ. Amen. और प्रभु, ये महिला जो दिमाग की दुर्बलता से पीड़ित है, दूसरे सब जिनके निवेदन हैं, हम उन्हें आपको समर्पित करते हैं पिता। हम अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Indeed, a privilege to be here tonight and have this fine audience look at and find singing those wonderful little choir. आज रात्रि Come out of it, and it won't. We're at the end of denominations. The wheat's taking shape. और स्मरण रखें, 20 वर्ष बीत गए हैं, इसमें से कोई नामधारी नहीं बना और ये नहीं आएगा। हम नामधारियों के अंत में हैं। गेहूं ने रूप धारण कर लिया है। But what's the matter with the wheat now? You can't. It must lay in the presence of the sun to ripen before the combine picks it up. परंतु अब गेहूं के साथ क्या मामला है? आप नहीं कर सकते। इसे पकने के लिए पुत्र की उपस्थिति में रहना है, इसके पहले कि इसकी यांत्रिकी उठा ले। Now the events that we see taking place, it's absolutely showed in the Bible of every age. We think we're all out of cater, but we're not. Everything's moving just exactly with God's Word. अब घटनाएं जो घटित होती हुई देखते हैं, ये पूरी रीति से बाइबल में दर्शाई गई हैं। हर युग की हम सोचते हैं कि हम उस प्रबंध से बाहर हैं, परंतु हम नहीं हैं। हर चीज ठीक परमेश्वर के वचन के संग चल रही है। Now, the Bible is a different book from any other sacred book. There's no book like the Bible because the Bible is God in word form. अब बाइबल किसी भी पवित्र पुस्तक से अलग है। बाइबल जैसी कोई पुस्तक नहीं, क्योंकि बाइबल वचन में परमेश्वर का रूप है। Its word is a thought expressed. God's thinking expressed it, His words through the prophets, and they wrote the Bible, which is in word form, and Jesus called it a seed. समझे, ये विचार का प्रगटीकरण एक वचन, परमेश्वर का विचार प्रकट किया गया, उसका वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, और उन्होंने बाइबल लिखी जो कि वचन के रूप में है, और यीशु ने इसे एक बीज कहा। And any seed will bring forth of its kind if it's in the right condition, right atmosphere. और कोई भी बीज अपने ही प्रकार को लाएगा यदि इसकी परिस्थिति ठीक होगी, सही वातावरण।
This book of prophecy is foretelling future events. Now the book contains the entire revelation of Jesus Christ. अब ये पुस्तक, भविष्यवाणी की ये पुस्तक, ये भविष्य की घटनाओं को पहले बता रही है। अब ये पुस्तक यीशु मसीह का समस्त प्रकाशन अपने में रखती है। You don't add to it or take from it, and every revelation must come by it. It must be the Word. आपको इसमें मिलाना नहीं या इसमें से निकालना नहीं है, और हर प्रकाशन इसी में से ही आना है। देखिए, इसे वचन ही होना है। So people say I had a revelation. Yes, we know Joseph Smith and many had revelations and things, but it was contrary to the Word. It's got to come according to the Word if it comes from God, because it's to vindicate or to prove God's presence. इसलिए लोग कहते हैं मेरे पास प्रकाशन था। जी हाँ, हम जानते हैं जोसेफ स्मिथ और बहुत से उनके पास प्रकाशन और चीजें थीं, परंतु वचन के विरुद्ध। इसे वचन के अनुसार ही होना है यदि ये परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि इसे प्रमाणित होना है या परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण। He foreknew all these things, being by his foreknowledge he foreordained, it's called in the Bible, predestinated every age to its place, and every man to its place, and every messenger to its place. और ये सारी चीजें पहले ही से जानता है। उसके पूर्व ज्ञान होने के कारण उसने अभिषिक्त पहले से ही अभिषिक्त किया है। बाइबल में ये पहले से ही ठहराया जाना है। हर युग उस स्थान पर, और हर व्यक्ति अपने स्थान पर, और हर संदेशवाहक अपने स्थान पर। He is God. The devil ain't pulling nothing over on him. And he's God, and he has ordained everything to take place and falls just exactly in line with his word. वो परमेश्वर है, शैतान उससे बढ़कर और कुछ नहीं ले सकता, और वो परमेश्वर है। उसने हर चीज को होने के लिए पहले से ठहराया है, और ठीक उसके वचन के अनुसार होता है। So if we can see by his word what age and what time we're living, you'll see it right here in the Bible. This age, what's supposed to take place at this time. इसलिए यदि हम देख सकते हैं उसके वचन के द्वारा कि किस युग, किस समय में हम रह रहे हैं, आप इसे ठीक बाइबल में देखेंगे। इस युग में हम क्या हैं, इस समय में क्या घटित होना है। Now the other books, we find lots of books that they call sacred books and so forth. And I've read the Quran and many others. अब दूसरी पुस्तकें, हम बहुत सी पुस्तकें पाते हैं जो पवित्र कहलाती हैं और आदि आदि। मैंने कुरान पढ़ी है और बहुत सी हैं। But you see, their sacred books are only a code of ethics, of morals, or of theology. But this book is a prophet. It's a different from any other book. परंतु आप देखिए कि उनकी पवित्र पुस्तकें आचार शास्त्र हैं, आचरण का या धार्मिक विज्ञान का। परंतु ये पुस्तक एक भविष्यवक्ता, ये और पुस्तकों से भिन्न है। The Bible is a word of God foretelling the future. It foretells because it's forewarned. बाइबल परमेश्वर का वचन है जो भविष्य को बताता है। ये पहले से बताता है क्योंकि ये पूर्व चेतावनी है। If God sends anything, He says and promised in the Bible that He would do nothing upon the earth until first He revealed it to His servants, the prophets. That's Amos 3:7. यदि परमेश्वर कुछ भेजता है तो बाइबल में प्रतिज्ञा करता है और कहता है तो वो तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक कि वो पहले अपने नबियों को न बता दे। ये आमोस 3:7। And God cannot lie. He reveals it. That's been His way of doing it all down through the ages. He's never failed to do it. वो और परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। वो इसे प्रकट करता है सारे युगों में होते हुए। उसका करने की यही विधि है। वो इसे करने में कभी असफल नहीं हुआ। Now, we are promised in the last days for this to be restored. There will be no church, no denomination, Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostals. They'll never, in their modern conditions, ever take this church to a bride. अब हमसे अंत के दिनों में इसे फिर वापस लाने की प्रतिज्ञा की गई है। वहाँ कोई कलीसिया नहीं होगी, कोई नामधारी नहीं, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल। वो इन कलीसियाओं से कभी दुल्हन नहीं लेगा उनकी इस आधुनिक स्थिति में। They can't do it. They fail. They're too much at one another's throats, and worldliness has creeped in and so forth, and they died right in their tracks. And so God knows that. वे ये नहीं कर सकते। वे असफल हो गए। वे एक दूसरे की जान को बने हैं और संसारिकता भीतर तक आ गई है और आदि आदि, और वे अपने ही मार्गों में मर गए
और इसलिए परमेश्वर जानता है। And to reveal this word, one say, well, I got this, and bless God, it's like that. That's just the way it was when Jesus came the first time. Everyone has a doctrine, everyone has this. It'll have to be something sent to us from God, and God's promised it. और इस वचन को प्रकट करने के लिए एक कहता है मुझे ये मिल गया और परमेश्वर धन्य है। ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से तब था जब यीशु पहली बार आया था, और हरेक के पास एक शिक्षा थी और हरेक के पास ये था, परमेश्वर के पास से हमारे पास कुछ आना ही था, और परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की थी। And the only way you do is keep his same pattern. He promised to send us in this last days, according to Malachi 4, a prophet upon the earth that would turn the hearts of the people back, the hearts of the children back to the apostolic fathers again. एक ही विधि है जिससे वो करेगा, वो ये कि अपना नमूना बनाए रखे। मलाकी 4 के अनुसार अंत के दिनों में उसने हमारे पास भेजने की प्रतिज्ञा की है। एक भविष्यद्वक्ता पृथ्वी पर होगा जो लोगों के हृदय को फेर देगा, बालकों के हृदय को प्रेरित पूर्वजों की ओर फेरेगा। He promised that in his word. Luke 17 and many other places that he promised it. That what he would do in these last days to bring this thing to a vindicated word. उसने अपने वचन में इसकी प्रतिज्ञा की है। लूका 17 और बहुत सी जगहों में उसने इसकी प्रतिज्ञा की है कि वो अंत के दिनों में वो इसे करने के लिए प्रमाणित वचन से क्या करेगा। See, a man can say anything, but unless God interprets that word. देखिए, एक मनुष्य कुछ भी कह सकता है, परंतु जब तक परमेश्वर उस वचन का अनुवाद न करे। See, now we have our own interpretation. We say it means this, and this is Methodist says this, the Baptist says this, the Pentecostal said this, the Oneness says this, the Tunist says this, and oh my, there you are. देखिए, अब हमारे पास अपनी व्याख्या है। हम कहते हैं इसका अर्थ ये है, और ये वाला मेथोडिस्ट और ये कहता है, बैप्टिस्ट ये कहता है, और पेंटिकॉस्टल ने ये कहा, वननेस ये कहता है, टूनेस ये कहता है, और ओह आप यहीं पर हैं। But God don't need no interpreter. He's His own interpreter. He interprets His own word by vindicating it in the age that is purposed for, the age that is given for. परंतु परमेश्वर को अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं अपना अनुवादक है। वो अपने वचन का स्वयं अनुवाद करता है, उसको प्रमाणित करने के द्वारा उस युग में जिसमें उसका उद्देश्य है, वो युग जो इसके लिए दिया गया। We're not living in a Pentecostal age. We're living in another age. See, we're not living in the Methodist age. We're living in another age. हम पेंटिकॉस्टल युग में जीवित नहीं हैं, हम दूसरे युग में जी रहे हैं। देखिए, हम मेथोडिस्ट के युग में नहीं हैं, हम दूसरे युग में जी रहे हैं। We're living on up here to the bride age, the calling out of the church and getting it together for the rapture. That's the age that we're now living. To my honest opinion, that's exactly the truth. हम यहाँ दुल्हन के युग में जी रहे हैं, कलीसिया को बाहर बुलाना और स्वर्गारोहण के लिए साथ इकट्ठा होना, यही वो युग है जिसमें हम रह रहे हैं। मेरे निष्पक्ष दृष्टिकोण में ये बिल्कुल सही है। And this book is a book of prophecy. Its believers are commanded to honor it and to read it and believe its author, for every word that's written in there must come to pass. और ये पुस्तक भविष्यवाणी की पुस्तक है। विश्वासियों के लिए आज्ञा है कि इसका आदर करें और इसे पढ़ें और इसके लेखक का विश्वास करें, क्योंकि हर वचन जो इसमें लिखा है उसे घटित होना ही है। Everything that's been promised has to come to pass because it is Jesus Christ in each age. हर बात जिसकी प्रतिज्ञा हुई है उसे घटित होना है, क्योंकि ये यीशु मसीह हर युग में है। The same yesterday, it was Jesus Christ as in Noah, it was Jesus Christ in Moses, it was Jesus Christ in David, it was Jesus Christ in Joseph. It's Jesus Christ the same yesterday, today and forever. बीते कल में ये यीशु मसीह नूह में था, मूसा में वो यीशु मसीह था, दाऊद में ये यीशु मसीह था, यूसुफ में ये यीशु मसीह था। ये यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। And it's Jesus Christ among His people today doing the things that He promised He would do in this age. It's Jesus Christ. और आज ये यीशु मसीह अपने लोगों के मध्य में है, उन प्रतिज्ञा किए गए कार्यों को कर रहा है जो उसने इस युग में करने को कहे हैं। ये यीशु मसीह है। But the church has become so starchy, so far away, like the brother said here. And our churches are becoming the same way until we've got to have something to shake us back to the Word. परंतु कलीसिया इतनी घमंडी हो गई, यहाँ तक कि जैसा भाई ने यहाँ कहा, और हमारी कलीसियाएं भी उसी प्रकार की हो गई हैं,
जब तक कि हमें कोई चीज झकझोर कर वचन पर वापस न ले आए। How do we know it's going to do it? It's got to come according to God's own plan. हम कैसे जानते हैं कि इससे काम चलने वाला है? इसे तो परमेश्वर की अपनी योजना के अनुसार आना ही है। It cannot come by layman. It will not come by the businessman. It cannot come by churches. God's laid down His plan. ये साधारण जन के द्वारा नहीं लाया जा सकता, ये व्यापारी के द्वारा नहीं आएगा, ये कलीसियाओं के द्वारा नहीं आ सकता। परमेश्वर ने अपनी योजना रखी है। I spoke here at Shreveport the other day on the national broadcast across the nation that trying to do God a service without being God's will. उस दिन मैं यहाँ शेरपोर्ट में बोला था समस्त राष्ट्र में प्रसारण के द्वारा कि परमेश्वर की सेवा बगैर परमेश्वर की मर्जी के करना। David tried to bring the ark of God back into the house. His anointed king. Why he consulted his delegates, his captains of thousands and 10,000s and so forth, and they all said that's the word of the Lord. दाऊद ने परमेश्वर के वाचा के संदूक को वापस घर में लाने का प्रयत्न किया। वो अभिषिक्त राजा था। क्यों? उसने अपने प्रतिनिधि से, अपने सहस्पतियों और आदि से परामर्श किया कि ये, और उन सब ने कहा कि ये प्रभु का वचन है। And they consulted the priests. That was wonderful. And they all got so inspired. They shouted. They done every religious act it was. उसने याजक से परामर्श किया जो बहुत अच्छा था, और वे सब इतने उत्तेजित थे कि वे चिल्लाए और हर धार्मिक कार्य किया जो था। And it was absolutely contrary to God's will, because there was a prophet in the land by the name of Nathan, and he wasn't even consulted about it. और वे सब परमेश्वर की इच्छा के इतने विरोध में थे कि वहाँ राष्ट्र में नबी था जिसका नाम नातान था, उससे इस विषय में पूछा ही नहीं गया। समझे? And we found out it didn't work, though they were sincere, trying to do God a service. और हम पाते हैं इससे कार्य नहीं हुआ, यद्यपि वे निष्ठावान थे, परमेश्वर की सेवा करने का यत्न कर रहे थे। And you can be ever so sincere, but until we know what we're doing, you're fighting at the air. Come back into the Word of God and get lined up and then go. Then you know. और आप कभी भी इतने निष्ठावान हो सकते हैं, परंतु जब तक हम ये नहीं जान लें कि हम क्या कर रहे हैं, आप हवा में घूंसे चला रहे हैं। वापस परमेश्वर के वचन में आए और उसके साथ सही हो जाएं और फिर जाएं, तब आप जानते हैं। Like a soldier don't know what to do until he gets orders to do it. We must be Christian soldiers and get orders from the Bible. For the hour now. एक सिपाही के समान जो नहीं जानता कि करना है जब तक कि उसे करने के लिए आज्ञा न मिले। हमें मसीह सिपाही होना चाहिए और इस घड़ी के लिए बाइबल से आज्ञाएं लेनी चाहिए। Not the charge yesterday, the charge the day before, but the charge today. Which way we go? Find out the hour that we're living in. ना कि बीते कल की जिम्मेदारी या उसके पीछे की जिम्मेदारी, परंतु आज कि हमें कहाँ जाना है, उस घड़ी का पता करें कि जिसमें हम जी रहे हैं। These modern events are slipping by us too swiftly, and one day we're going to find out we'll be left behind without nothing and be caught sealed into the mark of the beast before we know it. और ये आधुनिक घटनाएं हमारे से तेजी से निकल रही हैं, और एक दिन हम पाने जा रहे हैं कि हम खाली पीछे छूट जाएंगे और पकड़े गए, पशु की छाप में मोहर बंद हुए, इसके पहले कि हम जाने। Now, with patience we have to wait for this, for the prophecies as promised, every one of them must be fulfilled in its age. और अब धीरज के साथ हमें इसकी प्रतीक्षा करनी है, उन भविष्यवाणियों के लिए जिनकी प्रतिज्ञा हुई है, उनमें से प्रत्येक को इस युग में पूरा होना है। For it foretells us, the author has before done this, and we wait to see him do it again. What a time it is that we're living in. क्योंकि ये हमें पहले से बता दिया गया है, इसके पहले कि लेखक इसे करे और हम इसे होते हुए फिर से देखें। ये क्या ही समय है जिसमें हम रह रहे हैं। Something like a calendar. You look at the calendar and find out what day of the year you're living in. And you look at God's Bible to see what age we're living in. कुछ एक कैलेंडर के समान आप कैलेंडर को देखते हैं कि आप वर्ष के कौन से दिन में जीवित हैं, और आप परमेश्वर की बाइबल को देखते हैं कि हम कौन से युग में जीवित हैं। We're not living in the Methodist age, the Baptist age. We're living in the bride age, the calling, bringing back to God through a channel that He promised to bring it back in. He promised to it.
हम मेथोडिस्ट के युग में नहीं जी रहे हैं, बैप्टिस्ट युग में। हम दुल्हन के युग में जी रहे हैं। बुलाहट परमेश्वर के मार्ग से वापस लाए जा रहे हैं, जिससे उसने वापस लाने की प्रतिज्ञा की है। उसने ये करने की प्रतिज्ञा की है। But as it's been in every age, people let man put their own interpretation to it by theology and will not believe God's divine vindication of it. परंतु जैसा कि ये हर युग में रहा है, लोग अपनी ही व्याख्या डालते हैं उस धर्म ज्ञान के द्वारा और परमेश्वर के दिव्य प्रमाण का विश्वास नहीं करेंगे। That's God's interpretation, not what I say, what somebody else says, but what God has promised and what God does proves that it's God doing His own interpreting of His Word. ये परमेश्वर की व्याख्या है, न कि जो मैं कहता हूँ या जो कोई और कहता है, परंतु जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है और जो परमेश्वर करता है, ये सिद्ध करता है कि ये परमेश्वर की अपनी व्याख्या है, अपने ही वचन की। They told you Pentecostals 45, 50 years ago, your mothers and fathers, when they were genuine Pentecostals, come out of an organization and cursed the thing and walked out of it. उन्होंने ये तुम पेंतिकोस्तलों को 45-50 वर्षों पहले बता दिया, आपके माताओं और पिताओं को, जब वे मूल पेंतिकोस्तल थे, संस्था से बाहर निकले और बातों को श्रापित ठहराया और उनमें से बाहर आ गए। Then like a dog to its vomit went right back in it again. Done the same thing, you killed that church, you killed your own by the same thing. फिर जैसे कुत्ता अपनी उल्टी पर फिर से इसमें वापस चले गए और वही बातें की, उस कलीसिया को मार डाला, तुम अपनों के द्वारा ही मारे गए, वही चीज। Nothing against the people in there, nothing against it's the systems of the thing is what's doing it. उनमें के लोगों के विरोध में कुछ नहीं, ये उन चीजों का तंत्र है जो इसको कर रहा है। Go home, I don't preach this in another man's meeting. I'm going to preach this trail of the serpent and listen to it if you take the faith. घर जा रहा हूँ, मैं दूसरे व्यक्ति की सभा में ये प्रचार नहीं करता। मैं सर्प के चरण चिन्हों को प्रचार करने जा रहा हूँ, इसे सुने यदि आप टेप लेते हैं। And notice, this seemed the confirmation of the prophecies of God's word being fulfilled. और ध्यान दें, वे परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणियों को पूरा होता हुआ देखने में चूक गए। If those priests, they had it fixed up just exactly the way the Messiah was going to come. They know what was going to take place. The Pharisees had their idea, the Sadducees and Herodians and all, they had their ideas. यदि वे याजक, उन्होंने ये तय कर लिया था कि किस प्रकार से मसीह आने वाला था। वे जानते थे कि क्या घटित होने वाला है। फरीसियों के अपने विचार थे, सदूकी, हेरोदियन और उनके अपने अपने विचार थे। But he come contrary to every one of them, but exactly with the word. परंतु वो नहीं आया, वो उनके विचारों से विरुद्ध आया, परंतु ठीक वचन के अनुसार। Jesus said the same thing was here. If you would have known me, you should have known my name. If you know you said, well, Moses, we have Moses. Said, why, if you had believed Moses, you'd believe me because he wrote of me. यीशु ने कहा, यही बात यहाँ पर थी। यदि तुमने मुझे जाना होता तो तुम मेरे दिन को भी जानते। यदि तुमने जाना होता, तुम कहते हो, अच्छा मूसा, हमारे पास मूसा है। कहा, क्यों? यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे विषय में लिखा है। But see, when God was confirming exactly what he promised, they had it in some kind of a dignified way that Jesus was supposed to come and the Messiah had to come right to their group or he wasn't Messiah. परंतु देखिए, जब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं की पुष्टि कर रहा था, तो ये उनके लिए ये गौरवपूर्ण विधि से था, जिसमें कि यीशु को आना चाहिए था, और मेरा अर्थ मसीह को सीधे उनके झुंड के पास आना था, या फिर वो मसीह नहीं। Well, it's that way almost today. If you don't see through my glasses, you're not looking at all. See? And so that's just the way it is. That's the truth. We hate to think that, but it's absolutely the truth. भाई, आज ये लगभग वैसा ही है। यदि तुम मेरे चश्मे से नहीं देखते हो तो फिर तुम नहीं देख रहे हो। देखिए, और ये इसलिए, ये इस प्रकार से है, ये सत्य है। ऐसा सोचने से हमें घृणा आती है, परंतु ये पूर्णतः सत्य है। In Hebrews 1:1, God in sundry times wrote the Bible by His own chosen way. He never wrote it by theologians, neither does He interpret by theologians. इब्रानियों 1:1, परमेश्वर ने पूर्व युगों में बाइबल को अपनी चुनी हुई विधि से लिखा। उसने इसे धर्म ज्ञानियों के द्वारा कभी नहीं लिखवाया, ना ही इसकी व्याख्या धर्म ज्ञानियों के द्वारा की। There never was a time that
that the theologians ever had an interpretation of the Word of God. The interpretation comes only to a prophet. कभी भी ऐसा समय नहीं रहा कि धर्म ज्ञानियों ने परमेश्वर के वचन की व्याख्या की हो। व्याख्या केवल भविष्यद्वक्ता के ही पास आई। And the only way we're ever going to get out of this mess is for God to send us that prophet. Just exactly. The only way it's going to be done. It's been believed, watched for, and fulfillment. और केवल एक ही विधि है कि इस बखेड़ से बाहर आए। परमेश्वर ने हमें वो भविष्यद्वक्ता भेजा, बिल्कुल सही, केवल एक ही विधि के द्वारा। ये होने जा रहा है कि इसका विश्वास किया जाए, ध्यान दिया जाए और पूरा हो। See, it was not wrote by man, but it was wrote by God. It's not a man's book. It's not a theologian's book. It's a book of God, which is a book of prophecy, wrote by the prophets and interpreted by the prophets. देखिए, ये मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया, परंतु ये परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। ये धर्म ज्ञानियों की पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर की पुस्तक है, जो कि भविष्यवाणी की पुस्तक है। भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखी गई और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अनुवाद किया गया। The Bible said the word of the Lord comes to the prophets. Exactly. बाइबल ने कहा प्रभु का वचन भविष्यद्वक्ताओं के पास आता है। बिल्कुल सही है। How beautiful that was illustrated or demonstrated when Jesus was come on earth and John was the prophet of that day and he was prophesying. ये कितनी सुंदर चित्रित किया गया है, करके दिखाया गया है। जब यीशु पृथ्वी पर आया था और यूहन्ना उस दिन का नबी था और भविष्यवाणी कर रहा था। They said, "Oh, you mean to say that God's going to tear down our big associations here and all these things, and there's going to be a time and our temples won't no more be worshipped in?" उन्होंने कहा, तुम्हारे कहने का अर्थ है कि परमेश्वर हमारी यहाँ बड़ी बड़ी सभाओं को तोड़ने जा रहा है और ये सारी बातें, और एक समय होने जा रहा है जब हमारे मंदिरों में और अधिक आराधना नहीं होगी। He said there was coming a time when God would make a sacrifice out of the Lamb of God, a man, and he said that he would know him when he comes. उसने कहा, एक समय आ रहा है जब परमेश्वर के मेमने का बलिदान चढ़ाएगा एक मनुष्य, और उसने ये कहा कि जब वो आएगा तो वो जान जाएगा। He said he was so sure of his message. He said he's standing right among you now and you don't know it. He's right among you and you don't know it. और उसने कहा वो उसके संदेश के लिए इतना निश्चित था। उसने कहा वो ठीक अब तुम्हारे बीच में खड़ा है और तुम ये नहीं जानते। वो ठीक तुम्हारे मध्य में है और तुम इसे नहीं जानते। One day when Jesus walked out, John looked up and seen that sign above him. He said, "Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world." और एक दिन जब यीशु निकल कर आया, यूहन्ना ने ऊपर देखा और उसके ऊपर चिन्ह देखा। उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा लिए जाता है। That same minute Jesus knew then that he was vindicated before the people. उसी घड़ी यीशु जान गया कि वो लोगों के सामने प्रमाणित किया गया। Now he was the Word. Would we doubt that? The Bible said he was the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. अब वो वचन था, क्या हम संदेह करेंगे? बाइबल ने कहा वो वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में वास किया। Here he is. Here's the Word on earth. Look perfectly comes right out into the water to the prophet. Right, the Word always comes to his prophet. और वो यहाँ पर है, यहाँ वचन पृथ्वी पर है। देखा, सही सिद्ध, सीधा जल में भविष्यद्वक्ता के पास पहुँचा। ये ठीक बात है, वचन सदा उसके भविष्यद्वक्ता के पास आता है। So we can't expect it to come to theologians. We can't expect it to come to denominations. It's got to come God's channel route that He foretold us about, and that's the only way it'll ever come. इसलिए हम ये आशा नहीं कर सकते कि ये धर्म ज्ञानियों के पास आता है। उसके आने की आशा हम नामधारियों के पास नहीं कर सकते। अब इसे परमेश्वर के ही मार्ग से आना है, जिसके विषय में वो हमें बता चुका है कि यही मार्ग है जिससे वो कभी आया। It'll be hated, despised, rejected. When it does come, it'll be thrown out to one side and everything, but God will do it anyhow. इससे घृणा की जाएगी, तुच्छ जाना गया, अस्वीकार किया गया। जब ये आता है, इसे एक और फेंक दिया गया और आदि, परंतु जो भी हो परमेश्वर इसे करेगा। It was rejected in Jesus Christ. It was rejected in John. It was rejected by Jeremiah. It was rejected by Moses. It's always that way. But God moves right on in the way that He promised He would do it. Yes, sir. He never does fail to do it the same way. इसे यीशु मसीह में अस्वीकार किया गया,
इसे यूहन्ना में अस्वीकार किया गया, इसे यिर्मयाह में होते हुए अस्वीकार किया गया, इसे मूसा से होते हुए अस्वीकार किया गया। यह सदा इसी प्रकार से रहा है। परंतु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के मार्ग पर आगे बढ़ा कि वो इसे करेगा। जी हाँ श्रीमान, वो इसे करने में कभी भी असफल नहीं रहा कि इसे उसी प्रकार से करे। The man who's seen the vision or heard his voice never altogether understood it in many cases. He didn't